Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at the Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can learn about the paradigm shift in the disaster management. Which is the meaning of the paradigm shift is the fundamental change in approach or underlying assumptions. So it means that the paradigm shift is the change in the way of thinking for the disasters, and the transformations in the thinking is fueled by agent of the change and the occurs through the process. So that the historically disaster management has been our एक्टिव प्रोसेस, यानी कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो हमारा जो डिज़ास्टर के लिए जो थिंकिंग है वो थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा माइंड चेंज करता है. सो इट मीन्स कि जो टर्म डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शंस है वो इसमें मेंशन होता है. देन आफ्टर वी कैन learn about it is the shifting approach, यानी कि the reactive approach where the actions are taken after the disaster. For example, providing the humanitarian assistance, then relief and education. यानी कि डिज़ास्टर होने के बाद जो हमको प्रिकॉशंस लेना है वो इसमें मेंशन हो सकता है. देन आफ्टर द proactive approach where the historical integral planning and the management of the disaster is aviation. So that in other words we can say that it aim at the addressing the root causes of the perspective disaster rather than the addressing the stress and the shocking arising after the disaster. उसके बाद हमने देखा था कि प्रिपेयर्डनेस कौन कौन सी प्रिपेयर्डनेस का हमको ध्यान रखना है. सो द ऑल फेजेस ऑफ इमरजेंसीज मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेटा फ्रॉम द वेरियस वेराइटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि अलग अलग जगह से हम एक ही चीज़ के लिए डेटा यूज़ करके हम पूरा मैनेजमेंट बना सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं. द appropriate data has to be the greater organizing and displayed then during and the actual emergencies. Then emergencies can impact all or the number of government departments, and emergency personnel often need the details informations concerning the pipelines, buildings and others. Then after we can see the disaster risk assessment. A risk assessment is the process to identify the potential hazards and the analyze what could happen if the hazard will be occurs. यानी कि जब हज़ार्स होता है यानी कि आपत्ति आती है तब उसको आइडेंटिफाई करके वो कितनी मैग्नीट्यूड या कितनी असरकारक है वो उसके लिए रिस्क असेसमेंट करते हैं. और बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस the process for determining the potential impact resulting from the interruptions of the time sensing. Then after there are the numerous hazards to consider. For each hazard are the many possible scenario that could unfold depending upon the timing, magnitude and locations. So risk is defined as the probability of the harmful consequence or the expected losses. So these are the risk assessment. So risk assessment basically we can say that the probability of the losses. So which type of losses will be considered that in the risk? So hazards, then after vulnerability and element data risk. So these three factors will be considered for the risk. Then after we can see the objective of the risk assessment.
The purpose of the risk assessment is to determine where there is the any likelihood of the potentially hazard situations causing the death, injury, illness, or the disease to the people, workplace, and the neighboring of the environment. Then after how the south had the risk and whether the risk need to be controlled and how the urgently. After assessing and the evaluating the identified risk, the next step is to determine which one are the most serious, plan actions needed to control the risk, and then after the large serious risks of का लाइज ये जो पूरी प्रोसेस है, यानी कि जब आपत्ति आती है तब और उसके बाद क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में रिस्क असेसमेंट है। ये पूरा फ्लो चार्ट है रिस्क असेसमेंट के लिए कि पहला स्टेप है डिफाइन द ऑब्जेक्शंस एंड द डेप्थ एंड जनरल, देन आफ्टर द desirable systems, then after mentoring. So these are the whole assessment process. So tool for the configurations of the risk assessment is the national risk assessment is the strictly risk assessment that support the design and the national disaster management strategy, policy and regulations, the ADM program and बजट द अलोकेशंस, यानी कि हर कंट्री को इसके लिए पूरा सिस्टम के लिए एक बजट डिक्लेयर करना पड़ता है। देन आफ्टर द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवोल्यूशंस एंड द रिस्क रिडक्शंस, यानी कि हमने जो पूरी साइकिल देखी थी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स, वही चीज़ है कि रिस्क में रिस्क असेसमेंट हमने अभी देखा कि जैसे कि रिस्क एनालिसिस और रिस्क इवोल्यूशंस के कॉम्बिनेशंस को हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, और उसको रिडक्शंस या कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं सो उसको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो रिस्क एनालिसिस, इवोल्यूशंस एंड द रिडक्शंस कंट्रोल मेक द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद हमने देखा था द प्रेशर्स एंड द रिलीज मॉडल, यानी कि द opposing focus build the pressures and within the creating the pressures building from the each sides and hazards, and the release is the idea is incorporate to consequently the reductions of the disasters. So these are the model for this, एंड द डिज़ास्टर रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट हमने जो साइकिल देखी है वही है। तो देर आर द टू मेन कैटेगरीज, द प्रिपेयर्डनेस दैन रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, यानी कि प्रोटेक्शंस एंड रिकवरी फॉर्म। सो इन द लास्ट लेक्चर वी कैन सी दिस, then after we can see the preparedness and mitigations, then disaster risk mapping. Risk mapping is the process of establish the spatial and the temporal extent of the risk. So these are the risk mapping. So we can see the last lecture of the risk assessment, then risk management and etc. Now the today's topic is the preventions and the mitigations of the disaster and early warning systems. Okay, so what is the starting with the zonations and microzonations? Zonations यानी कि there are the defined definitions of the two different structures, the structure or the arrangement in the zone and the distributions of the kind of organism in the biographic zone। यानी कि अगर मैं जोनेशंस, यानी कि अगर जहाँ पे भी जैसे कि हमने अभी कोरोना में जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं
के पूरे जोन में डिवाइड कर सकते हैं, और उसको रिडक्शंस करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं. So geographically we can see that the pattern of the differentiations of the geography spheres यानी कि landscape of the earth and manifesting the sequentials and the definitions change of the geographic belt and zone, and the resulting in primary from the different in the amount of solar energy reaching the particular lattices on the earth surface. So यहाँ पे हम इतना कहते हैं कि zonation is the characteristic of the most component and the process of the natural geographic regions, जहाँ पे कंसिडर होगा द क्लाइमेट, देन हाइड्रोलॉजिकल, geological process, then the soils, plant cover and animal life, and the some exit formations of the symmetrically risk, so that we can see that if I consider that the decreases in the angle of the sun's rays, the strike the earth of the your turn to the pole, create the broad latitudes and the belt of the additions. So there are the two temperature zones and the two cold zones. यानी कि अगर रेज प्रॉपरली नहीं आते हैं तो देर आर दी टू जोन्स में डिवाइड हो जाता है. टू जोन फॉर द हाई टेम्परेचर एंड टू जोन फॉर द कोल्ड टेम्परेचर्स. So the formations of the analogous belts, especially the climate and the geographic belt, is related to the characteristic of atmospheric and atmospheric circulations. यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड्स है. देन आफ्टर वी कैन टॉक अबाउट द सेमी माइक्रोजोनेशंस. सो सेमी माइक्रोजोनेशंस यानी कि इज डिफाइंड defined as the process of the subdividing of the potential in seismic or the earthquake level area into the zone with respect to some geologically and characteristic of the site, such as the ground shaking, then liquefaction, stability, landslides, rocks, fall hazards, earth relate floods, flooding, and so the seismic hazards at the different location with the area can correctly be identified. यानी कि सेमी माइक्रोजोनेशंस हम अगर जो अर्थ के ऊपर जो हजार्स होते हैं जैसे कि लैंडस्लाइड होना, अर्थक्वेक होना, तो उस सभी पे डिपेंड्स होता है. सो माइक्रोजोनेशंस प्रोवाइड द बेसिक फॉर द साइट स्पेसिफिक रिस्क analysis, which can consist in the magnitude of the earthquake damage. यानी कि माइक्रोजोनेशंस क्या करता है कि वो पर्टिकुलर रिस्क एनालिसिस करता है जहाँ से अर्थक्वेक हो रहा है वो, एंड विच कैन असिस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक डैमेज. यानी कि वो मैग्नीट्यूड से, यानी कि जो कंपनशंस होता है उस पर कैलकुलेट करके हमको वो बताया गया कि अर्थक्वेक से कितना अर्थ को डैमेज हो सकता है, यानी कि कितनी हजार्स यानी कि नुकसान हो सकता है वो बताता है. So in the most general term, the seismic microzonations is the process of the estimating the response of the soil layer under the earthquake executions, and thus the various of the earthquake characteristic on the ground surface. So ground surface को लेके यानी कि माइक्रोजोनेशंस प्रोसेस करता है कि वो एक एस्टीमेट लगाता है सॉइल लेयर कितना है और उस पर कितना अर्थक्वेक पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है. सो दिस आर दी माइक्रोजोनेशन फॉर्म्स. सो इसकी ज़रूरत क्यों है? सो व्हाट इज़ दी यानी कि नीड फॉर दी माइक्रोजोनेशंस.
So microzonations is used for the required for the better understanding and planning, यानी कि these will help the authorities to better understand and the area which are more prone to seismic hazards and the adopt the mitigations measurement accordingly. यानी कि अगर द earthquake effect that depends on the ground and geographical attributes consist of the geographical and the geochemical informations. Hence, to mitigate it is the required to understand the impact of the different geological attributes. यानी कि यहाँ पे इस तरह का प्लानिंग करते हैं कि वहाँ की जो सॉइल है, उसकी जो रचना है, जो ज़मीन की रचना है, उसको पूरा स्टडी करके हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि कम से कम हज़ार्स हो. देन आफ्टर द एब्सेंस ऑफ द प्रेडिक्शंस मॉडल, यानी कि देर इज़ द नो रिलायबल प्रेडिक्शंस मॉडल फॉर द अर्थक्वेक. In that case, it becomes very important to adopt the preventions measurement and have the well planned mitigations measurement put in the place. यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रिवेंशंस यानी कि जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे ज़मीन कम है तो वहाँ से धरती कम होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अर्थक्वेक में, यानी कि धरती कंप में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एडॉप्ट द प्रिवेंशन मेजरमेंट, यानी कि हम जो पहले के जो प्रिडिक्शंस किए थे उस बेसिस पे हमको पूरा प्लान करना पड़ता है. एंड दी नेक्स्ट वन इज़ द फोकस ऑन द मिटिगेशंस एंड द रिलीजेस, यानी कि द जापान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ टू इफेक्टिव एंड द वेल इम्पिडेंट mitigation measurement help to the citizen. The citizen of the Japan's live in the peace dispute Japan, falling in the high seismic zone and the vulnerable to the frequency earthquake. So that the seismic by law, यानी कि civil engineers in the Japan are completely aware of the seismic laws and the more focus is given to aggressive restorative fitting and the vulnerable structures, and the new structures are designed with the seismic release. यानी कि जैसे कि यहाँ पे द फोकस ऑन द मिटिगेशन एंड द रिजिलियंस, यानी कि जापान में ज़्यादातर धरतीकंप या जो आता है तो वहाँ के जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो उसके जो पूरे रूल्स होते हैं वो रूल्स को फॉलो करके ही सब कुछ डिज़ाइन करते हैं, यानी कि ताकि क्या है कि जो भी डिज़ास्टर आपत्ति आए तब वो उस पर कुछ एक्शन लेना हो तो ले सकें. देन आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रिवेंशंस एंड द मिटिगेशंस ऑफ द डिज़ास्टर्स. सो वी कैन टॉक विथ द मिटिगेशन यानी कि जो डिज़ास्टर है उसको किस तरह से कम करें. एंड द प्रिवेंशंस आर यूज द सिनोनिम्स, यानी कि एक दूसरे को पर्यायी है. सो सम प्रिफर टू द ड्रॉप द टर्म मिटिगेशंस एंड यूज ओनली द प्रिवेंशंस, एंड द टर्म मिटिगेशंस कैन बी कंपेरिज्ड इन द टर्म प्रिवेंशंस, यानी कि एक दूसरे से डिपेंड से कंपेयर कर सकते हैं. सो मिटिगेशंस मीन्स टू रिड्यूस द severity of the human and the material damage caused by the disasters. So mitigations यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है और जो मटेरियल डैमेज होता है डिजास्टर से उसको कम करने के लिए ये पूरी टेक्निक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बीइंग अफेक्ट बाय द disaster. So the risk reductions is the chronologically the latest paradigm for the mitigations the impact of disasters. So that preventions and the mitigations, the preventions ensure the human actions or the natural phenomenon do not result in the disaster or the emergencies, so that the healthier peoples or the healthier peoples
healthy the environment will be, the less vulnerable to the most hazards. For example, the immunizing the people against the smallpox made them the less vulnerable to the virus. So ये पूरी जो सिस्टम है वो मिटिगेशन सिस्टम है. Then the disaster risk mitigation strategy includes, so they have some mitigations reductions technique. The talking with the first topic is the legal and the institutional framework, यानी कि creating the appropriate legal and the organizing framework in the first. So first step for the organizing to legal and the इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि हमको जो भी इंस्टीट्यूशंस लेवल या जो भी इनिशियल लेवल में जो फर्स्ट स्टेप है वो कंसीडर करना पड़ता है जो टूवर्ड्स दी डिज़ास्टर यानी कि इसका रिडक्शंस के लिए हो सके. देन आफ्टर द vulnerability analysis and the risk awareness, यानी कि appearance of the likelihood and the intensity of the hazards and analysis. So जब एनी कोई भी आपत्ति आती है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से रिडक्शंस करते हैं उसकी बात है यहाँ पे. यानी कि वेनरेबल देयर टू ऑफ द कम्युनिटी विद द मेकिंग द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल बॉडीज एंड कम्युनिटीज ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल्स एट ऑल लेवल्स अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ द पोटेंशियल नेचुरल एंड द मेन हजार्ड्स. यहाँ पे हम जो नेचुरली और द ह्यूमन मेन डिज़ास्टर्स है उसको हम किस तरह से कम कर सके उसके लिए पूरी बॉडीज़ होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग है, लोकल बॉडीज़ है जो उसके बारे में हमको अवेयरनेस यानी कि हमको समझाती है और किस तरह से रिडक्शंस हो सकता है. जैसे कि अभी कोरोना है तो वो हमको न्यूज़ देती है कि भाई 1 आवर के बाद आप हैंड वॉश करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, मास्क पहनो, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखो. तो दिस आर दी ऑल ऑफ दी risk awareness. Then after the planning, so building of the institutional capability and the meticulous long and the short term planning with the effecting, यानी कि हमको जो आपत्ति आई है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि उस बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई अगर जैसे कि धरतीकंप है तो धरतीकंप में हमने जो बिल्डिंग बनाई है तो उस टाइप की हम बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे. अगर तुरंत धरतीकंप आता है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर लॉन्ग टर्म पे आता है तो कितना नुकसान होगा उसके लिए हम पूरा प्लानिंग करते हैं. द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द प्लान एंड द कम्युनिटी रिलायंस, सो दैट द कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. नाउ उसके बाद हमको जो कम्युनिटी है उसको पूरा प्रिपेयर्डनेस किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, यानी कि द बिल्डिंग रिलायंस ऑफ द कम्युनिटीज टू फेस द क्राइसिस एंड इंश्योरिंग देयर full participations through the input like the education, training and urban planning, infrastructure buildings and long-terms. So crucial to these efforts, however, the existence of the safety cultural in the societies, यानी कि हम अलग अलग कम्युनिटी में जाके हम उसको एजुकेशंस देते हैं उसके बारे में. देन आफ्टर उसको किस तरह से रिडक्शंस करते हैं, विलेज में जाके प्रैक्टिकली हम समझाते हैं. देन आफ्टर ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि नाउ डे अर्थक्वेक और ऐसे टाइम में हम एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं उसका पूरा एजुकेशंस भी चलता है. एंड द लास्ट स्टेप इज़ द नॉलेज क्रिएशंस एंड द डिसिसेमेशंस, यानी कि हम द नॉलेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिजास्टर रिडक्शंस. जब डिज़ास्टर्स होता है तब उसको रिडक्शंस करने के लिए हम सबसे बेहतर रास्ता है, यानी कि रिडक्शंस करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता है एजुकेशंस.
उन सबको हम नॉलेज दे, छोटे से छोटे बच्चे से लेके सब लोगों को हम नॉलेज दे तो वो कम हो सकता है. सो दिस इज द डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजी. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम. हम जब डिजास्टर्स होता है तब किस तरह से हमको वार्निंग दी जाती है, या जैसे कि किस तरह से हम सब कुछ प्लानिंग करते हैं वो है. सो इसको हम EWS यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, या द सेट ऑफ द कैपेसिटी नीडेड टू द जनरेट एंड द डिमिनिशंस टाइमली एंड मीनिंगफुल वार्मिंग the informations to enable the individual community and the organization threatened by the hazards to prepare and to act the appropriately and in the sufficient time to reduce the possibility of the harm or losses. यानी कि अर्निंग वार्निंग सिस्टम में ये पूरी इस तरह से डिज़ाइन के जनरेट की जाती है कि डिसिमिलर टाइमलिंग कौन कौन से टाइम हो सकता है, देन मीनिंगफुल वार्निंग इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम प्रॉपरली हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, देन इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन बाय द हजार्स टू प्रिपेयर एंड द अप्रोप्रिएट द सफिशिएंट रिडक्शंस पॉसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस. सो ये लोग जो है जो किस तरह से जो इंसान को है वो कम से कम लॉसेस में ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, वो वार्निंग किस तरह से हम दे सकते हैं. जैसे कि धरतीकंप जब आता है तो एक ऐसी डिज़ाइन सिस्टम की थी कि जहाँ पे एक ऐसा वायरस यानी कि ऐसा एक आवाज़ डेवलप किया था कि वो सायरन्स बजने से सबको पता चल सके कि भाई अब कुछ आपत्ति आने वाली है. तो दिस आर थिंग, यानी कि आप अपने घर पे रहो या सेफ जगह पे रहो, उसके लिए वार्निंग थी. So the early warning systems can be defined as a set of the capacities needed to generate and the designated time and meaningful warning informations of the possible extreme event and disaster, जैसे कि flood, drought and fire, earthquake and tsunami threat as the people's lives. So इस सिस्टम से किसी भी आपत्ति को हम उसमें सभी लोगों को सरवाइव करने के लिए और पीपल को बचाने के लिए हम वार्निंग दे सकते हैं. द पर्पस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज़ टू इनेबल द इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड द ऑर्गेनाइजिंग ट्रीट टू प्रिपेयर एंड एक्ट द appropriate and the sufficient to time reductions to the possibility of the harm, losses or risk. So ये जो पूरी सिस्टम है वो रिडक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो मिटिगेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए. सो इफ़ेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग टेक्निकल foundations and the good knowledge of the risk, but they must be strongly with the clear message decision systems that reach that at a risk and the particular and the knowledgeable response by the risk manager and the public. यानी कि ये पूरी जो सिस्टम है पूरी टेक्निकली होती है और गुड नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी कि जो रिस्क है वो कितना रिस्क है और उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए. देन आफ्टर द विद द क्लियर ऑफ मैसेज, जैसे कि कोरोना है तो कोरोना क्या है और वो किस तरह से हम लोगों को नुकसान कर सकता है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए. उसका मैसेज किस तरह से पास ऑन होगा और अप्रोप्रिएट टाइम यानी कि सही टाइम पे क्या डिसीज़न लेना है उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो पता होना चाहिए. सो रिस्क मैनेजमेंट इन दी पब्लिक, वो दी पब्लिक के सिक्योरिटी के लिए. देन आफ्टर द पब्लिक अवेयरनेस एंड द एजुकेशंस आई द क्रिटिकल. जैसे कि कोरोना है तो अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि सीरियसनेस नहीं पता है कि भाई इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है.
So these are the system for the early warning systems. Yes, these are the basic chart for the early warning systems. You can see that generally the four element of the people's centered early warning system, you can see that the four stage. The first one is the measurement of precautions, then after the forecast indicates the catastrophic event, then after warning and the one set of anticipated response. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 3 स्टेप्स है और यहाँ पे 4 स्टेप सिस्टम है. 4 स्टेप सिस्टम में ओनली दी वन सेट ऑफ द एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. सो कंप्लीट एंड द इफेक्टिव पीपल center early warning systems is the comprised of 4 interrelated elements spanning knowledge of the hazards and the vulnerability through the preparedness and the capacity to respond. Then after the weakness of the failure in any one of these elements could be result in failure of the whole systems. यानी कि ये जो पूरी 4 सिस्टम्स हमने जो दिखाई है यहाँ पे, अगर उसमें से कोई भी एक सिस्टम फेल हो जाती है तो पूरी सिस्टम फेल हो जाती है. सो दैट द बेस्ट प्रैक्टिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑल्सो हैव द स्ट्रॉन्ग इंटर लीकेज बिटवीन द ऑल एलिमेंट्स इन द चेन, while the good governments and the appropriate institutional arrangement are not sufficiently represented on the 4 element diagram. So they are critical to develop of the effective early warning systems. Good governance is the encouraged by the robust legal and the regulatory frameworks. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ द प्रिकॉशंस, यानी कि जो प्रिकॉशंस लेने के लिए जो भी हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो देखेंगे. देन आफ्टर दी फोरकास्ट इंडिकेट्स दी कैस्टोग्राफिक एलिमेंट, यानी कि वो अप्लाई करने के बाद क्या कम होता है या बढ़ जाता है. अगर कम हो जाते हैं तो वो वापस से हम उसको दोबारा मेज़र करते हैं और वही प्रोसेस करते हैं जहाँ तक ज़ीरो, यानी कि वो पूरी तरह से रिमूव ना हो जाए. अगर नहीं होता है देन आफ्टर वी कैन गिवन दी वार्निंग, एंड वार्निंग के बाद हम वो वन स्टेप ऑफ द रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि ये पूरी सिस्टम को अगर अभी की जो सिचुएशन है उस पर मैं इम्प्लीमेंट करूँ, द मेजरमेंट ऑफ द प्रिकॉशंस, यानी कि जब कोरोना आया तब उसको देखा गया कि भाई किस तरह से वो ट्रांसमिट होता है या संक्रमित होते हैं. देन आफ्टर हम उसका पूरा इवोल्यूशन फोरकास्टिंग करते हैं. अगर रिडक्शंस होता है, जैसे कि हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग में ही लॉकडाउन कर दिया तो हमने देखा कि हाँ भाई रिडक्शंस हो रहा है तो लॉकडाउन हमने वापस से एक्सटेंड किया. देन आफ्टर हमने रिलीज़ किया, उसके बाद हमने देखा कि भाई जब अनलॉक किया तो डे टू डे स्टार्टिंग में बढ़ रहा था, तो वार्निंग दी हमने सबको कि भाई जहाँ तक बने तहाँ तक आप बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से 6 फुट रखें. और देन आफ्टर अब हम उसको रिडक्शंस किस तरह से कर सकते हैं वो अभी वन स्टेप ऑफ द एंटिसिपेटेड टू रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है उस पर डिपेंड है. सो दिस आर दी अर्ली वार्निंग सिस्टम. ये जो पूरी सिस्टम है वो पूरा 1 by 1 स्टेप हम एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं. सो द 4 एलिमेंट्स ऑफ द पीपल्स create the early warning system. The first one is the risk knowledge. So risk arise from the both the hazards and the vulnerability that are the present, and the risk assessment and the mapping will help to set the
provide the among the early warning systems need and to guide the preparedness for the response and the disasters. Then after the warning system, warning service, the sound seismic basic or the predicting potentially catastrophic events is required. So the constant monitoring of the possible disaster precursors is necessary to जनरेट द एक्यूरेट वार्निंग ऑन अ टाइम। यानी कि वार्निंग सर्विस में ऐसा होता है कि हमको एक्यूरेट रहना पड़ता है, सभी पे जो आपत्ति है उसको मेज़र करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और सही टाइम पे वार्निंग सिस्टम यानी कि उसका एक अलग से साउंड होना चाहिए जो सबको समझ में आए। देन आफ्टर द कम्युनिकेशंस एंड द disseminations, so clearly understand warning must be reached those at a risk for the people to understood the warning, and they must contain the clear useful informations that enable the proper response। ये पॉइंट बहुत इसी हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशंस इजीली होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। देन आफ्टर द रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, so it is the essential that the communities understand that risk. They must respect that warning service and should know how to reduce or react that. So these are the basic four elements for the people early warning systems. Now we can talk with one examples earthquake. This can be done by detecting the first energy to radiate from the earthquake, the P wave energy which release caused by the damage। हमने द अर्थक्विक डिजास्टर्स में देखा था कि व्हाट इज़ द पी वेव्स, एंड पी वेव इज़ द स्टार्टिंग और initial waves. Then after using the P wave informations, we first estimate the locations and the magnitude of the earthquake, यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है और कहाँ से स्टार्ट होगा वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। then the anticipated ground shaking around the region to be affected is estimate, and the warning is to provide to local populations। यानी कि अगर जहाँ से अर्थक्वेक हो रहा है उसका और उसकी मैग्नीट्यूड का एस्टीमेट निकाल के हम अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि जहाँ तक अभी नहीं आया है वहाँ पे हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है और आपको अभी किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। देन आफ्टर मेथड कैन प्रोवाइड द वार्निंग बिफोर द एस वेव अराइज, bring the strong shaking that usually cause most of the damage। जैसे कि हमने देखा था कि पी वेव और एस वेव में क्या डिफरेंस है। पी वेव इज़ द स्टार्टिंग और इनिशियल लेवल जहाँ से थोड़ा कंपन से स्टार्ट होता है, एंड एस वेव इज़ द मैक्सिमम पिक वैल्यूज़ ऑफ द। सो पी वेव और एस वेव के बीच के जो टाइम है उस टाइम ड्यूरेशंस में हम अगर इंफॉर्मेशन सबको देते हैं तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम थ्रू हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। सो एक किस तरह से होता है तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यू कैन सी इन योर स्क्रीन और द सेक अलर्ट बैंड, ये आप देख सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द सेस्मिक वेव फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिक। ये जो है अगर यहाँ तक किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड्स होता है। देन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द फॉल्ट कॉन्ट्रेंट इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन योर करंट लोकेशन ट्रैक्ड बाय द जीपीएस थ्रू, हम अगर यहाँ पे है तो यहाँ तक वो कैलकुलेट होगा। देन आफ्टर द सेकंड रिमेनिंग बिफोर द सिस्मिक वेव इज रीच यू, ये जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपके वहाँ तक आएगा वो बता रहा है। देन एक्सपेक्टेड इंस्टेंट इंटेंसिटी
ऑफ द अर्थक्वेक। देन आफ्टर ए जो है वो लेवल बताता है कि कितनी इंटेंसिटी हो सकती है। द एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, एस्टिमेट अर्थक्वेक यहाँ पे बताता है। एंड द इंटेंसिटी स्केल, ये जो है वो इंटेंसिटी स्केल है। सो दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर द हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्राफ। Now the next topic, okay, now the next one is the, yes, these are the tracking systems, how to identify. So earthquake early warning busy system. The first step is, you can see that the initially the earthquake repairing the fault and search out the different type of waves. The fast morning, the P wave first to arise, and but the damage is caused by on the shore, S wave and the surfaces. अगर यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो इतना डैमेज हो सकता है, इतना फास्ट वे हो सकता है। तो किस तरह से होता है? देन आफ्टर द सेकंड स्टेप इज द सेशंस डिटेक्ट द पी वेव्स एंड द इमीडिएटली ट्रांसमिट द डेटा ऑन द earthquake alert center that where the locations and the size of the quick and the determined and the update more data become the available. So यहाँ पे earthquake center पे जैसे ही earthquake होता है तो वो जो पी वेव्स या एस वेव्स है उसका सेंसर थ्रू earthquake सेंटर को डेटा जाता है। And then after the message from the alert center is immediately transmit to your computers or the mobile phone, which is determined and the अराइवल टाइम ऑफ शेकिंग एट द लोकेशंस। यानी कि पूरी सिस्टम में जैसे ही अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, सो जहाँ तक वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ तक पी वेव को सेंस करने के बाद वो अलर्ट सेंटर जाता है। एंड अलर्ट सेंटर यहाँ पे अलग अलग जगह पे, सभी जगह पे आप देख सकते हैं कि अलर्ट सेंसर रखा हुआ है, और उस बेसिस को हम तुरंत ही लोगों को पहुंचा सकते हैं मैसेज थ्रू, एज वेल एज दी अलग से वार्निंग सिस्टम देके या न्यूज़ में दिखा के कि भाई इतने टाइम में आपको यहाँ पे आप जो रह रहे वहाँ पे धरती कमा सकता है, और उसकी इसकी कैपेसिटी होगी। सो दिस आर दी बेसिक अर्थक्वेक अर्ली warning systems. So a need for the early warning system is for the disaster reductions is legislated matter of the public policy at the highest national level for two main reasons. The first one is clear is public safety and the protections of the human life. बट ऑब्वियस है अर्ली वार्निंग सिस्टम जान हानि पे ही डिपेंड्स होती है, तो उनको बचाने के लिए सबसे पहले। एंड द सेकंड वन इज़ द प्रोटेक्शंस ऑफ द नेशनल रिजर्व बेस एंड द प्रोडक्टिव असेसमेंट टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ के लिए भी है। सो कन्वर्जेंटली बाय द रिडक्शंस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर्स, the government avoid the functionally and the political burden of the massive rehabilitations of cost. So first one है अर्ली वार्निंग सिस्टम। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए है, एक तो कम ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो और लॉसेस हो, एंड देन आफ्टर द इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है उस पर। Then after the communications of the early warning system informations, and the effective early warning systems need the effective communication systems, and early warning communication systems have made the two main components: the communications infrastructures hardware that must be reliable and the robust, especially during the natural disasters, and the appropriate and the effective interactions among the main actors of the early warning process. यानी कि अभी हमने देखा कि जो अर्थक्वेक है उसमें एक सेंसर है और ट्रांसमिट सिस्टम है।
ये दोनों चीज़ की बात यहाँ पे होती है कि कम्युनिकेशंस, यानी कि जो अर्थक्वेक है या कोई भी हज़ार्ड्स है उसको सेंस करें और इजीली कम्युनिकेट हो सके पब्लिक में या डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकता है. सो today's two questions for the first two questions for the 1 marks is for your worksheet questions, and the three questions for the your assignment questions. Your worksheet name is the worksheet 14. If any question regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can also mail me. My mail id and the contact numbers in your screen. Thank you.